Good morning, students. You are welcomed once again in the lesson in the Kingdom of Fools. Earlier, I have explained you that in the Kingdom of Fools, the king and the minister both were idiots. They did not want to regulate the business of their kingdom like other kings. They decided to change the day into night and the night into day. I mean to say, all the business began to happen during night, and during day they begin to sleep. According to the order of the king, all the people did their business during the night. I mean, the shopkeeper uh, ran his shop at night, the plowman plowed his field at night. In this way, all the people started doing their business during the night. And as the sun came out in the morning, all the people went to their bed. Not only people, but also all the creature of the town, all the creature of the kingdom, like birds, cattle, animals, eh, all began to sleep during the day. One day, a guru and disciple came to the kingdom of the fools, and they were very surprised to see the silence everywhere. It was midday, the sunlight was shining brightly, but they could not see anyone awake. I mean, all the creatures, all the people were sleeping. The guru and the disciple both were surprised to see this scene. When it grew dark, all of a sudden, all the people got up and started to do their business. Now, the guru and the disciple were very hungry. They wanted to eat something. They went to a shop and inquired the price of thing. They were completely surprised. They found that all the things were at the same rate. You must have heard a statement, Andher Nagari Chaupat Raja, Takeser Bhaji, Takeser Khaja. The same situation was here. Now, the Guru came to know that it was not safe for them to stay there. So, he advised his disciple to leave the town at once. But the disciple was very greedy fellow. He was very happy because he got all the things on a very low price. So he did not want to go. The Guru went alone from there, and the disciple remained there, stayed there. One day it so happened that during night a burglar broke into the house of a merchant. Inside he collected all the expensive things, jewelries, money, gold, silver, everything. He collected inside the merchant's house, and when he was coming out through the wall fell on him and he was dead. Now, the brother of the thief made a complaint before the king that his brother had been murdered performing his night business. तो यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे, और अब हम आगे देखेंगे.
हाँ देखिए, वेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच। यहाँ जो है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, यानी जो भी हो उसने अपना नाम बता दिया, योर हाइनेस महाराज। वेयर यू एट होम वेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस, राजा ने उस व्यापारी से पूछा, वेयर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे, वेन द डेड मैन, जब मरा हुआ व्यक्ति, ब्रगल्ड योर हाउस, तुम्हारे घर में घुसा। तो मरा हुआ व्यक्ति का मतलब ये हो गया, तो मरा हुआ व्यक्ति तो घर में घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि वह आदमी जो चोरी करने के बाद मरा था, यानी सेंधमार जब तुम्हारे घर में घुसा तो क्या तुम घर में थे। हालांकि इसका अर्थ जो है डेड मैन जो है यह स्पष्ट कर देता है कि वह आदमी जो चोरी करने तुम्हारे घर में घुसा था लेकिन अब जीवित नहीं था। तो यहाँ सेंस ये है कि वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस, यानी क्या तुम उस समय घर पे थे जब वह आदमी जो कि मर गया है वह तुम्हारे घर में घुसा था। तो व्यापारी कह रहा है, यस, हाँ माय लॉर्ड, मेरे मालिक, ही ब्रोक इन, उसने दीवार को तोड़कर अंदर घुसा, वह दीवार को तोड़ा अर्थात दीवार में सुरंग बनाया और अंदर घुस गया। एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार जो थी कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, यानी तुम पर जो दोषारोपण किया गया है अपराध का, यानी तुम पे दोषारोपण किया गया है उस चोर के हत्या का। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें अवश्य सजा देनी पड़ेगी, यानी मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा ने उस व्यापारी से कहा कि हम लोग तुम्हें अवश्य सजा देंगे। लॉर्ड, हे मालिक, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा, हे मालिक, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, दीवार तो मैंने बनाई नहीं, दीवार मैंने तो बनाई नहीं। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, अब यह गलती तो उस व्यक्ति की है जिसने दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, यानी मर्चेंट ने कहा राजा से कि महाराज, इसमें मेरी गलती कहाँ है, मैंने तो उस चोर को मारा नहीं है। यानी चोर तो दीवार के गिर जाने के कारण मरा है, तो दीवार तो मैंने बनाई नहीं। तो जिसने दीवार बनाई है वह अपराधी है, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, राजा ने पूछा, कौन है वह। माई लॉर्ड, हे मेरे मालिक, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार तो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने दीवार बनाई थी। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक वृद्ध व्यक्ति हो गया है, अर्थात वह बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास ही में तो रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, अब देखिए, द किंग सेंट आउट, राजा ने भेजे, मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहकों को, टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, यानी उस मिस्त्री को, राजमिस्त्री को लाने के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, उसके जो संदेशवाहक थे उसे पकड़ कर लाए। टाइड हैंड, उसके हाथ और पैर बांधकर, टाइड हैंड एंड फुट, यानी उस मिस्त्री के हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती
राजा के संदेशवाहक उसे दरबार में लाए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अच्छा मिस्त्री, तुम ये बताओ कि क्या तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय में घर बनाया था इसका? डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? क्या तुमने इस आदमी का घर उस समय बनाया जब इसके पिता जीवित थे? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, आई डिड, मैंने बनाया था। तो व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? तो तुम किस प्रकार की दीवार बनाए थे? यह दीवार जो तुम बनाए थे किस प्रकार की दीवार थी? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह दीवार एक गरीब आदमी पर गिर गया है। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने तो उसकी हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम लोग तुम्हें मौत की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी के लिए आदेश करते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा मिस्त्री गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज लिसन टू मी, कृपया आप मेरी बातों को सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपना आदेश देने से पहले, अपने आदेश देने से पहले आप मेरी बातों को सुन लीजिए। इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और यह दीवार अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए था, माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग इस पे नहीं था। यानी जब मैं इस आदमी के घर का दीवार बना रहा था उस समय मेरा दिमाग काम पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है। वेल ए डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार आ रही थी जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस रास्ते से, ऑल डे विथ हर एंकल्स जिंगलिंग, अपने पायलों को खनखनाते हुए, छनछनाते हुए। यानी मिस्त्री बता रहा है कि महाराज, यह बात सत्य है कि दीवार अच्छी नहीं बनी। इसका कारण यह था कि मेरा मन जो था काम पे नहीं था, और मेरे मन को डाइवर्ट करने वाली, दूसरे तरफ मोड़ने वाली एक नर्तकी थी जो बार बार उस रास्ते से अपने पायलों को खनखनाती हुई, पायलों को बजाती हुई आ रही थी और जा रही थी। इसीलिए मेरा मन जो था दीवार जोड़ने में नहीं लगा और दीवार कमजोर हो गई। तो इसमें मेरा दोष नहीं है। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, मैं अपने मस्तिष्क को और आंखों को एक जगह नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। तो मिस्त्री ने कहा कि आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना होगा। आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता है वह जहां रहती है। यू आर राइट, राजा ने कहा तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स, यह मामला तो पेचीदा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें अवश्य इस पे ध्यान देना है। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के पेचीदे झगड़े को, विवाद को निर्णय कर पाना बड़ा ही कठिन है। लेट अस गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुलाते हैं। वेयर एवर शी इज,
जहां कहीं भी वह है, यानी जहां कहीं भी वह नर्तकी रह रही है उसे हम बुलाते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमैन। अब वह जो डांसिंग गर्ल थी वह एक बूढ़ी औरत हो गई थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो? क्या तुम कई साल पहले इस रास्ते से होकर आई गई थी? दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। यह बेचारा मिस्त्री जहां दीवार बना रहा था वहां पास के ही रास्ते से तुम कई बार आई गई थी। डिड यू सी हिम? क्या तुमने इस आदमी को देखा था जब यह दीवार बना रहा था? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट वेरी वेल, बहुत बढ़िया से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकल्स जिंगलिंग। तो तुम बार बार उस रास्ते से आई गई जिसके पास यह आदमी इस व्यापारी के घर की दीवार बना रहा था, और तुम बार बार अपने पायलों को झंझनाती रही। यू वेयर यंग एंड डिस्ट्रैक्टेड हिम। तो तुम उस समय नौजवान थी और तुमने इसके ध्यान को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। सो ही ब्यूल्ट ए बैड वॉल, इसलिए इसने दीवार कमजोर बना दी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, शेष जो है दूसरे दिन देखेंगे।